اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں جو ہے کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ بہترین کتاب ہے، تو اس پہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس کا ایک نہ آیت بنا سکتا ہے کوئی، نہ ہی اس میں ذرا بھی ترمیم کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث شفا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت میں یہ چیز بیان کر دی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، تو اس طریقہ سے اس کی تمام آیات جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ باعث رحمت، باعث شفا اور باعث جو ہے وہ دوا ہے. تو دعا کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ دعا کی بات جو ہے وہ چار لہجوں سے کرتے ہیں، یعنی کہ دال واو الف والی دعا اور دال عین الف والی دعا. یہ دونوں دعائیں جو ہے اس کے آگے دو حصے ہیں، دوا بالغذا اور دوا بالروح. تو جب جو ہے وہ دوا بالغذا یعنی کہ جو غذا کھائی جائے اس میں بھی دوا ہے، اور جو ہم جو ہے وہ دوا کی جائے اس میں روح شامل ہو تو تب وہ دوا جا کے جو ہے وہ اپنا اثر کرتی ہے. تو ہم روحانی طور پہ جب تک جو ہے وہ اپنے مریضوں کے لیے بہتر دعا نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے یہ دعا جو عام دعا ہے وہ اثر نہیں کرتی. اصل میں دعا کے اثرات کا منبع جو ہے وہ دعا پہ ہے، کہ ہم جو ہے وہ دعا جب کوئی بھی دعا ہم دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جب ہم مریض کے لیے دعا دے کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے شفائے کاملہ اجلا عطا فرما دیتے ہیں. تو آج زہر کی بات کرتے ہیں. ہمارے حکمہ میں زہر اور تریاق دونوں چیزیں شامل ہیں. تو بہت سی جو ہے وہ حکیموں نے مختلف زہروں کے تریاق، جس میں سانپ کا زہر ہے اور اسی طرح سے بچھو کا زہر ہے. میں علم السموم یعنی کہ جو ہے وہ ٹاکسیکولوجی جو ہے یہ مختلف کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں. تو اس لیے جو ہے یہ آبشن کا زہر، بنگ کا زہر اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے زہر اور اس کے اثرات، جسم پر اثرات، اور یہ ہم اس کے جو ہے وہ کیسے اثرات ختم کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک بہت زبردست قسم کا ٹاپک ہے. تو زہروں کے اثرات جو ہے یعنی کہ ہم نے پوائزننگ پلانٹ، جتنی بھی پوائزننگ چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا حکمت کی دوائی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پوائزن ہے، وہ بھی زہریلی ہوتی ہے. تو میں ان کو بڑی آسانی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 2 روٹیاں زیادہ کھا لیں تو آپ کو کیا وہ دوائی جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی؟ مطلب روٹی زیادہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہو جائے گا، آپ کو الٹی آنے کی شکایت نہیں ہو جائے گی، تو آپ کی جو طبیعت میں متلی اور اس طرح سے بے چینی نہیں پیدا ہو جائے گی. تو اسی طریقہ سے جتنے بھی جو ہے وہ اگر ادویات کا ہم زیادہ غلط طریقے سے استعمال کر لیں تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے لیے زہریلی اثرات جو ہے وہ پیدا کرے گا. فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ جب ہم غذا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر وہ غذا جا کے جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ پوائزن کی صورت یعنی کہ زہریلی صورت اختیار کر لیتی ہے. بیسیکلی طور پر دیکھیں گے، میں نے اس دن بھی آپ کو مثال دی تھی اس سے پہلے بھی، کہ گوبر ہے، گوبر سے بہت زیادہ جو ہے خوشبو آتی ہے، تو اس کی بو جو ہے وہ ہمارے دماغ کو چڑھے گی، ہمارے گلے کی طرف آئے گی. جو لوگ جو ہے اس طرح سے غذا کھا کے لیٹ جاتے ہیں یا جو ہے وہ غذا کر کے سو جاتے ہیں رات کو 2 بجے، اگر فنکشن شادی کا ہے تو اس کو اٹینڈ کر کے، آج کل تو بہت زیادہ شادیوں کا رواج ہے، تو اس کو اٹینڈ کر کے آتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو فوڈ پوائزننگ جو ہے یعنی کہ وہ جو ہم نے اصل میں غذا کھائی ہے
वो हमारे लिए जो है जहरीले असरात जो है वो पैदा कर लेती है। इसी तरीके से मुगलों के दौर के अंदर बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ये बहुत बड़े मुगलिया खानदान के जो है ये बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। तो इनकी आप बीती जो है, इन्होंने जो है ये अपने आप बीती जहरीली खुराक के अंदर जो है जहर को शामिल करके जो है इन्होंने आजमाया, और उसके बाद जो है इसका त्रियाग जो ढूंढा गया कि हम इससे जो है कैसे जो है वो बच सकते हैं। तो ये जो है कि तबीब ने जो है सबसे पहले जो है इसका त्रियाग जो है वो ढूंढा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जहरें जितनी भी जो है उसमें जो है वो उसके त्रियाग भी होते हैं। तो त्रियाग को ढूंढना जो है वो एक तबीब का काम है, और इसी तरीके से जो जहर खाया गया है उसको ढूंढना भी एक तबीब का काम है। हम उसकी जो है खुशबू से, उसके जो है वो असरात से, जिस्म के ऊपर असरात से हम उसके जो है वो पता चल सकता है कि हमें जो है वो कौन सी चीज जो है वो कौन सा जहर इस्तेमाल हुआ है। सैखे का जहर इस्तेमाल हुआ है, तांबे का जहर इस्तेमाल हुआ है, आर्सन का जहर इस्तेमाल हुआ है, तांबे का जहर इस्तेमाल हुआ है, और इस तरीके से बहुत से ऐसे जहर है जो कि बहुत से पॉइजनिंग प्लांट है जिसकी वजह से जो है वो हमें जहर के साथ जो है हमारे जिस्म पे आ सकते हैं। खाद का जहर भी होता है, जो खाद हम खाते हैं अगर ज्यादा मकदार में खा ले जाए तो वो भी अपने जहरीले असरात जो है वो रखता है। इसी तरीके से जो है वो जहर जो है वो बनाना जो है वो जुर्म है, जहर खिलाना भी जुर्म है। जहर खोरी से जो है वो मौत वाकया हो सकती है। तो इसके बाद जो है जब तक त्रियाक ना मिले उस वक्त तक जो है एक मरीज जो है वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में हमेशा रहता है। तो इस तरीके से जो है ये मुख्तलिफ जहरें जो है वो कैसे असर करती हैं जिस्म के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, सांप का जहर जो है ये जाके जो है वो कैसे असर करता है और जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीली लाता है। क्या उल्टी से हम जो है वो जहर के साथ को खत्म कर सकते हैं? क्या हम मेदे के मुबे मेदी को जो है वो साफ करने से या अंतों से निमा करने से हम जहर के साथ को खत्म कर सकते हैं? अगर हमारे फर्ज किया खून में शामिल हो जाए जहर तो हम उसका जो है प्रयाग कैसे कर सकते हैं? तो ये आपकी जो है वो सोचने की बात है। तो इस तरीके से जो है बाबर ने जो है वो जहर का त्याग कैसे किया और उसके तबीब ने जो है जहर का त्याग कैसे किया, तो ये सोचने की बात है। तो मेरे दोस्त इसको सोच के जो है वो जवाब इंशाल्लाह कल हम जो है इसके बारे में जवाब को ढूंढेंगे और जानेंगे कि जहरों के त्याग को हम जो है वो किस तरीके से मुख्तलिफ जहरों के असरात को कैसे खत्म करते हैं। और बाबर को जहर जो है वो बाबर को किसने जहर दिया और क्यों जहर दिया गया और उसका त्रियाग तबीब ने कैसे ढूंढा, तो इसके बारे में कल हम मजीद डिस्कस करेंगे। आज सांगला हिल में एक मीटिंग थी। असल में डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब ने मुझे जो है ये स्पीकर बना दिया है, मतलब कि ये जो बड़ा मुझे जो है ये आजकल 4 दावतें थी आज मेरी जो है ये सुबह से अभी तक जो है शाम तक जो है ये 4 दावतें थी मेरी जो है मुख्तलिफ जगहों पे मेरे जो है वो प्रोटोकॉल की तकरीर भी थी और इस तरीके से जो है ये तो मैंने उनमें से 2 दावतें अटेंड की है। तो उसमें से एक दावत की जो है वो मैं आपको बात सुनाता हूँ थोड़ी सी और उसके बाद हम जो है वो अपने नफ्सियाती प्रोग्राम की तरफ जो है वो जाएंगे। तो एक दावत जो थी आज जो सांगला हिल में थी, ये डॉक्टर मोहम्मद सलीम फैसल सलीम साहब के साथ मुझे जो है वो जाना पड़ा। तो डॉक्टर मोहम्मद अकरम अजमल साहब जो है इसमें जो है ये मैं और डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब मेहमान खुशी थे। मैं जो मुकर्रर उनके साथ था और इस तरीके से मुझे वहाँ उनके साथ जो है जाना पड़ा। तो सांगला हिल में ये मीटिंग थी असनाद की तकसीम के बारे में और इस तरीके से जो है ये रजिस्ट्रेशन के वो इंचार्ज है फैसलाबाद के होम्योपैथिक के। तो इस तरीके पूरे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के इंचार्ज है, मुझे अपने साथ ले गए। तो इस तरीके से जो है ये वहाँ पे एक डॉक्टर अजमल साहब ने जो है ये एक तकरीर की बड़ी प्यारी सी, वो मैं अपने दोस्तों के दोस्त गुजार जो है वो करना चाहता हूँ। तो उस तकरीर में जो है ये बड़ी प्यारी तकरीर थी जिसको मैंने थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए जो है संभाल के रखा है और आप लोग भी इस पे जो है वो अमल करें और इस पे जो है बड़ा फायदा आपको भी होगा और मुझे भी इससे बड़ा फायदा होगा और इसको रिपीट करने से जो है ये सब दोस्तों को फायदा होगा। सबसे पहले ये है कि हमें जो है जब भी हम कोई भी मुआलिज है उसको अपने जो है वो मतलब या क्लिनिक पे कैसे जाना चाहिए। क्या जो सो के उठ के जो है वो फौरी तौर पे
उठते ही जो है जैसे भी सलवटे वाला लिबास हो ऐसे चले जाना चाहिए, नहाने के बगैर चले जाना चाहिए, या के थोड़ा बहुत जो है वो अपने आप को मेंटेन करके जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये पॉइंट जो है वो नोट किया, एक मुआलिज को हमेशा जो है वो साफ सुथरा लिबास पहन के जाना चाहिए, कि मरीज और मुआलिज में यही फर्क हो कि एक मुआलिज जो है वो मुआलिज जो है वो अपनी लिबास से जो है वो ज़ाहिर हो कि ये एक मुआलिज है, वो अपने आप को मतलब बेशक साफ सुथरा लिबास, धोया हुआ लिबास, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। तो वो पहन के जो है वो नहा के आपने जो है वो मसवाक करके या आप टूथपेस्ट करते वो करके अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा और हाइजीनिक कंडीशन के अंदर जो है वो अपने आप को तैयार करके आप जो है वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा लिबास पहन के जाए, और इसी तरीके से जूता पॉलिश करके जरूर जाए। मरीज जो है जब आपके पास आए तो आपकी अपीयरेंस, आपकी शख्सियत उसको ये मुतासर करे कि ये एक मुआलिज है, और मुआलिज जो है ये मेरा जो है ये मुझे दुरुस्त करने के लिए बैठा है। तो अगर आप ऐसे ही जो है वो नहाने के बगैर, धोने के बगैर, मुंह हाथ धोने के बगैर या लिबास चेंज करने के बगैर मरीज से भी बुरा लिबास आप पहन के जाएंगे तो मरीज पे जो है वो गलत असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो है वो रेपुटेशन भी खराब हो। उन्होंने ये भी फरमाया कि आप अगर बाजार में भी जाते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो बतौर मुआलिज होनी चाहिए, कि आप जो है बाजार में जा रहे हैं तो आपका लिबास इस तरह से होना चाहिए कि लोग आपको जो है मुआलिज के तौर पे जानते हैं, आपको वही रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिबास की वजह से वहाँ रिस्पेक्ट आपकी होगी। यानी कि क्लिनिक पे भी आपकी जो मतलब पे भी आपकी जो है वो लिबास की वजह से रिस्पेक्ट होगी, और बाजार में भी आपकी जो है वो लिबास की वजह से रिस्पेक्ट होगी। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप जो है बेहतरीन किस्म का लिबास जो है वो पहन के अपने क्लिनिक पे जाए, और जब भी मतलब या क्लिनिक पे जाए उस वक्त जो है आपका जो है सबसे जो है वो अहम काम यही है कि मुकम्मल तौर पे आपने जो है मरीजों के लिए जो है वो तैयार होते रहे। दूसरा नंबर पे ये है कि हमें जो है वो टाइम टेबल की बहुत ज्यादा पाबंदी करनी चाहिए। जो टाइम जो है वो आपने फिक्स किया हुआ टाइम, मतलब 5 बजे से 10 बजे तक मेरे क्लिनिक का टाइम है, तो मुझे जो है वो 5 बजे पूरे अपने क्लिनिक पे, जैसे कि अब मैं ड्यूटी पे जो 8 बजे से 2 बजे तक मेरी ड्यूटी है, तो वहां पे मैं 8 बज के जो है वो 8 बजे से 5 मिनट पहले जो है वो चले जाता हूँ, और 2 बज के 2 मिनट पे या 3 मिनट पे जो वहां से फारग होता हूँ, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक है तो हाजिरी जो है वो जाते भी लगानी पड़ती है बायोमेट्रिक, और आते भी लगानी पड़ती है। तो इसी तरीके से जब आपका प्राइवेट क्लिनिक है, बेशक आपका जो मतलब प्राइवेट है, तो लेकिन उसमें बाद लोग ये सोचते हैं कि सुस्ती कर लेते हैं कि वहाँ कौन सा अभी जाते मरीज बैठे होंगे जी, कोई बात नहीं, हम जो है वो जब होगा तो उस वक्त चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो नहीं, आपका टाइम टेबल जो है जो कि आपने बना लिया है, जो आपने शराइत तय कर लिया अपने क्लिनिक को जो देने के लिए वक्त मुकर्रर कर लिया है, आप 1 मिनट भी उससे पहले जो है वह ना उठे, और 1 मिनट भी जो है वो तो 1-2 मिनट जो है वो पहले जाने की कोशिश करें, ताकि आप मुकर्रर वक्त पर जो है वो अपने क्लिनिक को खोल सके और अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो अपने क्लिनिक को जो है वो देख सके। तो इस तरीके से टाइम टेबल की पाबंदी जो है वो एक तबीब को जो है वो बहुत जरूरी है, एक मुआलिज को बहुत जरूरी है, ताकि आपके मरीज जब डिस्टर्ब ना हो। तो बात का जो है मरीज जब डिस्टर्ब होते हैं, मतलब कि आप मैं सागरा इनसे लेट हुआ हूँ तो मुझे 20 फूल जो है वो रास्ते में आ गए कि सर आप नहीं आए, सर आप लेट हो गए, सर आप नहीं आए। तो इस तरीके से जो है मरीजों के अंदर ये टेंशन बन जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप जो है वो टाइम पे जो है वो अपने मतलब या क्लिनिक पे आए, और टाइम से जो है वो 1 मिनट पहले भी जो है वो ना जाए, ताकि मरीजों को पता है कि डॉक्टर साहब या हकीम साहब के जो है वो 10 बजे जो है वो उठ जाना है, तो वो कोशिश करें कि 10 बजे तक जो है वो आपके पास पहुंच जाए। अगर आप जब 2 मिनट 10 मिनट पहले भी उठते हैं तो वो भी मरीज के लिए जो है वो परेशानी का बायस बनेगी। उनको पता है अभी 10 मिनट रहते हैं तो मालिक जो हमारा जो है वो बैठा हुआ होगा। तो इस तरीके से कोशिश करें कि उसमें जो है ये जो है ये टाइम की पाबंदी जो है वो लाजमी करें। तो मैंने पहली बात जो जिसमें मैंने अभी जोर दिया उसको भी जो है मेंटल कंडीशन के बारे में भी आप जो है लिबास के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। तो मैंने ये डिसिप्लिन जो है ये सारा कुछ जो है फौजियों से जो है मैंने जो देखा है कि वहाँ पे जो कैजुअल लिबास और है, और हर किस्म का ड्रेस जो है जहाँ पे वो जाते हैं
तो वो वही ड्रेस जो है पहनते हैं। मतलब अगर पीटी में जाना है उन्होंने तो पीटी वाला लिबास जो है पहन के जाते हैं। अगर खेलों में जाना है तो वो जो है ट्रैक सूट पहन के जाते हैं और जूता जो पहन के जाते हैं। तो इसी तरीका से जो है ये अगर उन्होंने किसी खाने की दावत में जाना है तो वो जो है वो कैजुअल ड्रेस पहन के जाते हैं। तो अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना है तो वर्दी पहन के जाते हैं। तो फौजियों के अंदर ये मैंने जो है ये एयरफोर्स के अंदर भी देखा है और बड़ी फौज के अंदर भी ये मैंने देखा है कि वो जो है वो जब मैस में जाएंगे तो वो लिबास पहन के जाएंगे, मैस वाला लिबास। और अगर जो है वो ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वो लिबास पहन के जाएंगे। अगर वो ड्यूटी पे जाएंगे तो वो जो है वो अपनी वर्दी पहन के जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये और मैंने खास तौर पे जो है ये देखा कि मैंने सलमा में भी अगर जाना है ना फिल्म देखने भी जाना है तो वहां पे भी शेरवानी या कि आपने जो है वो कोट पहन के जाना है या बोले जो शेरवानी की जगह पे जो वास्कट पहन के जानी है। ये जो है उसके बाद जो है चप्पल तक का वो ख्याल रखते हैं। तो मैं एक दफा जो है ये अपने सरगोदा एयरबेस पे जो है वो एक दोस्त मेरे थे उससे मिलने गया तो उन्होंने जो है वो नाश्ते की टेबल पर भी जो है वो उन्होंने कहा कि सर आप जूता ये वाला जूता पहन के आएंगे। वहां पे नाश्ते की टेबल पे जो है ना ये वाला तो एक जो है वो आप पेशावरी चप्पल नहीं पहन सकते बल्कि आप बूट पहन के वहां पे आएंगे। तो इस तरीके से वो लिबास का खास ख्याल जो है वो फौज में रखा जाता है। तीसरे नंबर पे उनको उन्होंने जो है ये हमें लिबास और टाइम टेबल के बारे में बात की। और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो है सफाई सफाई के ऊपर बड़ा जोर दिया कि उन्होंने जो अपनी सफाई भी आप जो है वो खुद करें और क्लिनिक की सफाई जो है वो बेशक फर्नीचर पुराना हो जिस किस्म की जो है वो मर्जी हो तो आप उसकी जाके जो है वो एक दफा जो है वो झाड़ फूक जरूर करें। उसकी जो है वो सफाई जो है वो नीचे से जो है वो फर्श भी साफ होना चाहिए। आपकी जो है वो सिंगल रेमेडी यानी कि एक एक दवाई जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ होनी चाहिए। तो हम वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी दवाई को हाथ लगाता हूँ तो उसको साफ भी करता हूँ जैसे मेरा बच्चा होता है इस तरीके से मैं उसको साफ करता हूँ। अपने क्लिनिक की सफाई, अपने जो है फर्नीचर की सफाई, अपनी कुर्सी की सफाई, अपनी मेज की सफाई और जो है ये दवा की सफाई जो है डब्बों की सफाई और ये जो मतलब झाड़ फूक जो है वो वो कहते हैं कि मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। जब भी किसी दवाई को मैं खाता हूँ तो उसकी जो है वो तमाम ख्वास जो है मेरे जेहन में आ जाते हैं जो मैंने पढ़े होते हैं। तो इस तरीके से मुझे दवाई जो है वो दोबारा जो है रिपीट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है एक मालिक जो है वो ये कोशिश करे कि रोजाना जो है ये उसको जो है एक दवाई को कम से कम जो है उसको साफ जरूर करें। तो आप क्लिनिक के 10 खाने हैं तो आप एक खाना आज साफ किया, दूसरा खाना अगर हर हफ्ते के बाद जो है वो आपके 10वें खाने की बारी जो है वो आ जाएगी। तो हर रोज एक जो है वो सफाई आप उसको जो है वो करते जाए। एक मेरे आप किताबों वाली शेल्फ की आज सफाई की है, कल जो है वो दूसरी शेल्फ की सफाई कर ली है, तीसरी शेल्फ की सफाई कर ली है। इस तरीके से जो है ये झाड़ फूक करते हुए हमें जो है अद्वियात भी याद हो जाती है और तीसरे नंबर पे जो है हमें सफाई भी जो है हमारी हो जाती है, फर्नीचर की सफाई भी हो जाती है। चौथे नंबर पे जो है आखिरी बात उन्होंने मुझे बहुत पसंद आई कि आप जब भी सोने लगे तो आप जो है वो एक दवा को लाजमी पढ़ें। 365 दिन है, 365 दिनों में जो है वो 365 अद्वियात आपको याद हो जाएंगे। जब आपको 365 अद्वियात याद हो जाएंगी तो इस तरीके से जो है जब भी आप किसी मरीज को वो दवाई देने लगेंगे तो आपको उसके ख्वास जो है वो याद आ जाएंगे। तो जब हमें जो है उसके ख्वास याद आ जाएंगे तो हम जो है उसको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकेंगे और इस तरीके से जो है वो हम उसको कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है ये उसके दवा के ख्वास को हमें जो है वो रोज एक दवाई पढ़ने से हमें उसके जो है ख्वास भी पता चल जाते हैं और हम उसके जो है वो मुआवजा जो है वो बेहतर तरीके से उसके जो है वो सारे अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से 4 पॉइंट जो है मतलब मालिज का जो अपने आप की सफाई करना, क्लिनिक की सफाई करना, तैयार होके जाना, टाइम पे जाना और उसके बाद जो है टाइम पे जाने के बाद जो है उसकी जो है ये रोज की एक दवाई जो है याद करना और मरीजों की जो है भलाई के लिए दुआ करना और मरीजों की कोशिश करना कि हम जो है ये मरीजों के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहना कि उसकी जो है वो जो भी बीमारी है उसको जो है वो शफाए कामला अजला अता हो जाए। तो चंद बातें जो है करने के बाद जो है हम जो है वो आज का जो मैडम अलम साहबा जो है वो तशरीफ ला चुकी है तो वो भी
अक्सर जो है वो अच्छा लेक्चर देती हैं। तो चंद बातें मैं करने के बाद जो है मैडम को जो है ये मौका दूंगा। इसमें जो है ये समझना और बयान करना, ये अब हम जो है ये नफ्सियात के बारे में थोड़ी सी बात करके इसको वाइंड अप करते हैं जी। किसी किस्म की जो है वजूहात की बिना पर तजर्बा में जो है जो फर्क आ गया है, तो इसको हम किस तरह से समझते हैं कि जो ज़हनी रुझान का इम्तहान करते हैं और ज़ाहरी सूरत और रवैया का इम्तहान करते हैं, किस तरह से ज़ाहरी हालत इसकी है और शख्सी जो अलामात और मालूमात जो है वो हमें जो है वो क्या हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो हमारे रवैया के अंदर जो है कौन कौन सी जो है किस किस्म की जो है वो तब्दीली आई है, हम उसकी शक्ल देख के जो है उसका चेहरा देख के हम उसको पहचान जाते हैं, ये परेशान है, गमज़दा है या हैरानज़दा है या जोशीला है, या इसके अंदर जो है वो ये पागल इसका चेहरा जो है पागलपन जैसा है, गुस्सा वाला है, या कि परेशान है या हैरान है या शर्मिला है, या कि इसमें जो है वो और किसी किस्म की जो है वो चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम जब उसका चेहरा देखते हैं तो हमें जो है वो उसके रवैये का जो है वो एक अंदाज़ा हो जाता है। चेहरा देखने से जब भी मरीज हमारे जो है वो क्लिनिक में आता है या वेटिंग रूम में बैठता है, तो हमें उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज जो है किस किस्म का जो है वो ज़हनी उसका तवाज़ुन किस तरह से जो है वो बरकरार है या कि नहीं है, और उसमें जो है वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो है ये आ चुकी हैं। तो जब वो हमारे जो है वेटिंग रूम में बैठता है तो वो बाद का जो चीज़ों को छीनना शुरू कर देता है या खुद ही हंसना शुरू कर देता है। तो वेटिंग रूम में जो है वो हमारा तकरीबन जो है ये होता है कि हमारी नज़र उस पर जो है वो होती है। इसके बाद जो है खुद ही हंसना शुरू कर देता है, अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देता है, या कि जो है वो किसी स्विच को हाथ लगाना शुरू कर देता है, या कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर जो है वो तब्दीली के अंदर जो है वो आ जाता है। इसके बाद जो है हम उसकी जो है वो रवैया का जो है वो मुकम्मल तौर पे जब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो हमें उसकी रवैया का जो है मजीद जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि उसका रवैया जो है वो कैसा है। तो हम लिबास के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ख़ास तौर पे जब हमारे पास जो है कोई भी ज़हनी मरीज़ आता है, तो हम उसकी जो ज़हनी हालत उसके लिबास से भी जो है वो परख लेते हैं। लिबास की आज थोड़ी-सी मज़ीद बात जो है वो करके इसको वाइंड अप करते हैं जी। तो लिबास में अगर देखें, लिबास हमें ज़ाहिर करता है कि ये जो है बंदा जो है इसकी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। अब अगर कोई गाँव से बंदा आया तो उसने जो है वो सर के ऊपर पगड़ी या बरासा या इस किस्म का रुमाल उसने सर के ऊपर बांधा होगा, धोती बांधी होगी या उसका कुर्ता लंबा होगा, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसका लिबास जो है वो किस किस्म का जो है वो किस वो फैमिली से, किस जो है वो बैकग्राउंड से या कहाँ से शहर से तल्लक रखता है या के गाँव से तल्लक रखता है। अभी मैंने लिबास की जो है फौजियों की लिबास की बात की, इसी तरह से जो है एक स्टूडेंट का लिबास है, उसमें हमें पता चलता है स्टूडेंट है तो वो जो यूनिफॉर्म में जब आता है। इसी तरीके से जो है जब डॉक्टर या वो मौलवी हमारे पास आता है तो तब भी हमें पता चल जाता है कि मौलवी जो है वो कम से कम उसमें जो है ये डॉक्टर ने जो है वो ओवरकोट वगैरह पहना होता है। जिस तरह भी हमारा जो है स्टाफ है, मतलब नर्स वगैरह है, तो उन्होंने भी जो अपनी यूनिफॉर्म में वो अक्सर आते हैं। तो ये कैजुअल ड्रेस में जो है वो कुछ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है उनको पहचान लेते हैं। तो इस तरह से जो है मरीज को भी जब वो इस तरीके से हमारे पास आता है तो हम उसके लिबास से जो है को काफ़ी हद तक उसकी जो है शख्सियत का अंदाज़ा कर लेते हैं। तो मतलब कि उसमें जो है वो अपने आप को अहमियत अगर देता है तो लिबास को साफ सुथरा पहना होगा। अगर उसने जो है वो अपने आप को अहमियत नहीं देखा देता तो उसमें जो है वो क्या होगा कि खाली और ज़ाहरी जो है उसके अंदर जाएगी लिबास जो है उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो अपने आप की तरफ तवज्जो ही नहीं देता, बिल्कुल पागल है और ये सोच ही नहीं रखता कि इसने जो है वो कौन सा कंट्रास्ट कलर पहनना है। बहुत सी औरतों के अंदर ये शऊर नहीं होता कि वो जो है वो मुख्तलिफ कलर के जो है लिबास पहनती है जो उनकी शख्सियत पे सूट नहीं करते। तो इसी तरीके से जो है ये गहरे 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 रंग के कुछ कलर जो है वो मर्द और औरतें पहन लेती हैं, और बुरे तरीके से जो है ये मौका की मुनासबत से लिबास नहीं पहनते। तो उससे भी हमें किसी की शख्सियत का पता चल जाता है कि अगर ये मतलब सख्त किस्म का दिन है, इतनी गर्मी है, तो वहाँ जो रेनी कोट पहन के कोई बंदा आ गया है, मतलब जो बारिश में जो है वो कोट पहनते हैं, तो वो अगर पहन के आ गया तो सावधान है कि उसका जो है ये दिली तवाज़ुन बेहतर नहीं है।
इससे उसकी जो है वो शख्सियत का पता चल जाता है कि इसकी शख्सियत जो है वो किस किस्म की है। तो इस तरीके से बाल मरीज जो है बड़े सताने वाले और तंग करने वाले होते हैं। खासतौर पर मैं बहुत से पेरीफेरी के गाँव में रहा हूँ, जितने भी ये वाले जो है ये जाला वाला इलाका और इधर शाह जीवना वाला इलाका और गढ़ महाराजा वाला इलाका, वहाँ पे जो है ना वो जांगली जो मैं मदद पाऊँ उन लोगों से, तो जब भी वो आते तो वो लंबी बात जो है वो करने की कोशिश करते कि वो अपनी हिस्ट्री को बयान करेंगे। और मुआलिज का फायदा तो होता है इससे कि मुआलिज उसकी जो है वो हिस्ट्री लेके थोड़ा बहुत जो है वो उसकी बैकग्राउंड को जो है उसकी नवीयत को अच्छे तरीके से समझ लेता है। लेकिन फिर भी जो है इतना भी मुआलिज के पास टाइम नहीं होता कि वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ये चीज समझ ले। इसी तरीके से बाद लोग जो है वो वेट लॉस की जो है बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं और परेशान रहते हैं हमेशा जो है वो, और ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, जिसमें जो है वो कसलावा जो है एक सूरत उनके अंदर जो है मौजूद होती है। और बाद लोगों को जो है वो ज़हनी बीमारी नहीं होती बल्कि जो है वो जिस्मानी और तबाही बीमारियाँ होती है, जिसका जो है वो इजहार अपने चेहरा से करते हैं। तो चेहरा से कैसे इजहार होता है, तो हम चेहरा को देख के जो है फौरी तौर पर मरीज का जो है वो अंदाजा कर लेते हैं कि उसमें जो है वो चेहरा से हमें जो है वो उसका इजहार जो है जज्बाती इजहार हमें इमोशनल जो है वो मिल जाता है कि अगर गुस्सा में होगा तो हम चेहरा देख के उसको पता चल जाएगा कि ये जो है गुस्सा में है। ज़हनी दबाव में होगा तो हमें जो है ताबी पता चल जाएगा। उसके बाद जो है वो जब बात कर रहा होगा मुंह के किनारे ऐसे ऐसे बाल लोग जो है वो आंखें झपकते हैं और अजीब तरीके से जो है वो बात करते हैं। और इस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो जब इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करेंगे या उनकी चाल डाल से जो है वो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है वो किस किस्म का बंदा जो है किस तरह से चल रहा है और हमें जो है ये क्या एक्टिंग कर रहा है या वाकई इसको ये बीमारियां जो है वो मौजूद है। तो इससे जो है वो उसकी हम मेंटल कंडीशन को जान के जो है उसका हम जो है वो मुआवजा करेंगे। तो मैं अपने डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे जो है ये एक स्पीकर बना दिया है इंटरनेशनली तौर पे, बल्कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझे दावतें देते हैं ये कोई ना कोई रोज़ मुझे जो है ये वेबिनार सेमिनार और इस तरीके से जो है ये दावत मिलती है। तो जिसके अंदर मैं जाके जो है थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर साहब ने मुझे इतना हौसला और बैकअप जो है वो दिया है कि मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ। इन्हीं की वजह से आज मैं जो है ये मुख्तलिफ जो है वो वेबिनार्स और सेमिनार्स में जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। और मुझ में जो है जैसे कि डॉक्टर साहब की करज जो है डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब की पीछे जो है हाथ इनका मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमेशा जो है मैं आज भी मेरी तकरीर जो है वो बड़ी पसंद की गई। तो मैं तो मतलब कि जो है नॉर्मल ही बात करता हूँ लेकिन बाद लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ और अपने दोस्तों का और भाइयों का कि उन्होंने मुझे जो है वो मौका देते हैं और ख़ास तौर पे मुझे बात जो है वो सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको सलूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आप जो है मेरे पीछे जो है हमेशा कायम रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और मुझे इसी तरह से हौसलामंद जो है रखना जो है वो आपका हौसला मेरे साथ चलता रहे। बहुत शुक्रिया सर।